بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایکسرسائز 1.2 کا کویسچن نمبر 5 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں بیٹا۔ آسان ترین یہ کویسچن ہے، اتنا لینتھ ہی نہیں ہے بیٹا۔ تو رقم اس نے دی ہوئی ہے کہ 1 پلس ایوٹا کا اسکیئر ہے بٹا 2 مائنس ایوٹا از اکول ٹو ایکس پلس ایوٹا وائی ہے۔ دونوں سائڈیں اس نے اکول دی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جی ایکس اور وائی جو ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے بیٹا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں رقموں کو آپ نے نیچے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دونوں رقمیں آپ نے نیچے لکھ لی۔ 1 پلس ایوٹا کا اسکیئر بٹا 2 مائنس ایوٹا از اکول ٹو ایکس پلس ایوٹا وائی، یہ نیچے لکھ لی۔ تو سب سے پہلے بیٹا یہ 1 پلس ایوٹا کا اسکیئر جو ہے یہ کھولتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اے جمع بی کا مربع، وہ ہوتا ہے جی اے کا اسکیئر پلس بی کا اسکیئر پلس 2ab۔ تو سیم ہے، یہ اے ہے یہ کیا بی ہے، تو اے کا اسکیئر پلس بی کا اسکیئر ایوٹا کا اسکیئر آ گیا پلس 2 آ گیا، فرسٹ رقم آ گئی، پھر کون سی آ گئی سیکنڈ۔ تو مطلب جیسے اے جمع بی کا اسکیئر کھولتے ہیں، مربع کھولتے ہیں، سیم آپ نے اس کو ویسے کھول لیا فارمولا لگا کے۔ بٹا آ گیا 2 مائنس ایوٹا آ جائے گا از اکول ٹو ایکس جمع ایوٹا وائی آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا کیا کریں گے، ایک کا اسکیئر ایک ہی ہوتا ہے، پلس 2 کو جب ایک سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ہی آ جاتا ہے، پھر 2 کو ایوٹا سے ملٹیپلائی کریں تو 2 ایوٹا آ جاتا ہے، پلس اب ایوٹا اسکیئر -1 کے اکول ہوتا ہے تو یہاں پہ -1 لگا دیں گے بیٹا ہم۔ بٹا آ جائے گا 2 مائنس ایوٹا آ گیا از اکول ٹو کیا آ گیا، ایکس پلس ایوٹا وائی آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ، یہ آ جائے گا 1 پلس 2 ایوٹا آ جائے گا، پلس مائنس مائنس ہوتا ہے، 1 آ جائے گا بٹا 2 مائنس ایوٹا آ گیا از اکول ٹو کیا آ جائے گا، ایکس پلس ایوٹا وائی ایز اٹ از ہم یہاں پہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد بیٹا اس کو مزید سمپلیفائی اگر ہم کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ 1 ہے، یہ کیا -1 ہے، تو 1 اور -1 آپس میں کٹ دیں گے تو یہ 2 ایوٹا آ جائے گا بٹا 2 مائنس ایوٹا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہمارے پاس آ گیا آنسر۔ یہ والی رقم بیٹا آپ نے ساتھ ساتھ ویسے ہی لکھی جانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 ایوٹا بٹا 2 مائنس ایکس آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 2 مائنس ایوٹا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ہم کانجوگیٹ لے لیں گے، اس کو ریشنلائز کر لیں گے۔ تو کیا کریں گے، یہاں پہ 2 مائنس ایوٹا ہے تو ملٹیپلائی کر دیں گے، اوپر اور نیچے یہی رقمیں لکھ دیں گے۔ اب یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پہ دونوں پہ کیا لگا دیں گے، پلس پلس لگا دیں گے۔ آپ کو بھی یہ پتہ ہے یہ اصول ہے، اگر یہاں پہ پلس ہوتا تو آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا لگا دینا تھا، مائنس لگا دینا تھا۔ تو لہذا جب 2 ایوٹا بٹا 2 مائنس ایوٹا کو ہم ریشنلائز کریں گے، اس کا کانجوگیٹ لیں گے تو ملٹیپلائی کر دیں گے 2 پلس ایوٹا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی لکھ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ مائنس تھا اس لیے پلس پلس لگا دیا از اکول ٹو ایکس پلس ایوٹا وائی ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا اوپر والی رقموں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے، نیچے والی رقموں کو آپس میں ہم کیا کر دیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے۔ تو اس کو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ 2 ایوٹا کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو 2 ٹو دا 4 آ جاتا ہے، ساتھ کیا آ جاتا ہے، ایوٹا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلس ہو گیا۔ اب 2 ایوٹا کو ایوٹا سے ملٹیپلائی کیا تو 2 آ جائے گا، ایوٹا اور ایوٹا، ایوٹا کا کیا ہو جائے گا بیٹے، یہاں پہ اسکیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے، اب نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس رقمیں سیم ہے، ٹھیک ہے، علامتیں ان کے سائن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا الگ الگ اسکیئر لے لینا ہے۔ تو یہاں پہ 2 کا اسکیئر آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، پلس مائنس مائنس ایوٹا کا کیا آ جائے گا بیٹے، یہاں پہ اسکیئر آ جائے گا از اکول ٹو ایکس پلس ایوٹا وائی ویسے ہی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ 4 ایوٹا آ جائے گا، پلس پھر یہ 2 آ جائے گا۔ اب ایوٹا اسکیئر کی جگہ پہ اس کی ویلیو کیا آ جائے گی، -1 آ جائے گی بیٹا، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دی۔ بٹا آ گیا، 2 کا اسکیئر کیا ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، مائنس آ گیا، اب ایوٹا اسکیئر کی جگہ پہ اس کی ویلیو -1 آ جائے گی از اکول ٹو کیا آ گیا، ایکس پلس ایوٹا وائی آ گیا ہمارے پاس۔ نیکسٹ بیٹا کیا کرنا ہے اپنے، بالکل آسان ہے، نیکسٹ آپ نے کرنا ہے جی، اب یہاں پہ دیکھیں یہ 4 ایوٹا آ جائے گا، پلس مائنس مائنس ہوتا ہے، 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 آ جاتا ہے، بٹا 4 آ جائے گا۔ اب مائنس اور مائنس کیا ہو گیا، پلس، ساتھ کیا آ جائے گا، 1 آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اس کو ہم مزید جو ہے وہ سمپلیفائی کریں گے، یہ 4 ایوٹا ہے اور یہ کیا -2 ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ریئل نمبر جو ہوتا ہے وہ پہلے لکھتے ہیں، امیجنری مطلب ایوٹے والی رقم جو ہے وہ بعد میں لکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، -2 کو پہلے لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب 4 ایوٹا کے ساتھ یہاں پہ سائن پلس کا ہے تو پلس 4 ایوٹا بعد میں لکھ لیں گے، بٹا 4 میں جمع کریں گے تو 5 آ جائے گا۔ دوبارہ دیکھ لیں، ریئل نمبر والی رقم جو ہے سمپل والی وہ ہم نے پہلے لکھ لی -2 اور پلس کا 4 ایوٹا بعد میں لکھ لیا، بٹا 4 میں 1 جمع کریں گے تو 5 آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، از اکول ٹو کیا ہو گیا، ایکس جمع ایوٹا وائی ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد بیٹے یہاں پہ دیکھیں، اب کیا کریں گے، یہ -2 جمع 4 ایوٹا بٹا 5 ہے، تو یہ 5 جو ہے اس کا بھی اوور ہے، بٹا ہے اور اس کا بھی ہے، اس کو الگ الگ کر لیں گے تو -2 بٹا 5 آ جائے گا، پلس
4 अयोटा बटा 5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखें x किसके बराबर आ जाएगा, -2 बटा 5 के, और y किसके बराबर आ जाएगा, 4 बटा 5 के। तो x की वैल्यू -2 बटा 5 और y की वैल्यू 4 बटा 5 आ जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है हमारे पास, 2x प्लस अयोटा वाई है इंटू 1 माइनस अयोटा है इज इक्वल टू किसके है, 4 प्लस 2 अयोटा के। कहता है फाइंड करना है हमने x और y। आपने क्या करना है, इसी रकम को नीचे लिख लेना है, 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा लिख लेना है, ठीक है बेटे। इस साइड को हमने वैसे ही लिखते जाना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान मेथड आपको मैंने बताया हुआ है। आपने लिखना है जी 2x, उसके बाद 1 माइनस अयोटा लिख देना है, प्लस अयोटा वाई लिखा, उसके बाद फिर ये सारी रकम 1 माइनस अयोटा लिख दिया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। फिर बेटा 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाता है माइनस, अब 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस अब क्या करेंगे बेटा, अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y ही आ जाता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा y को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ गया बेटा। उसके बाद 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर दोनों में, यहाँ पे भी अयोटा और यहाँ पे भी अयोटा है, तो ये दोनों अयोटा जो है ये कॉमन आ जाएंगे, प्लस लगा के -2x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा y, क्योंकि अयोटा को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अयोटा जब निकल जाएगा तो पीछे बच जाएगा -2x और प्लस y बच जाएगा, ठीक है। माइनस आ गया y, अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा बेटा। फिर 2x आ गया, प्लस -2x प्लस y आ गया, ब्रैकेट के अंदर आगे साइड लगा के अयोटा आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, साथ क्या आ जाएगा y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, y जमा 2 अयोटा आ जाएगा बेटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको तरतीब दे देंगे, रियल नंबर जो है 2x और प्लस y इसको साइड पे लिख देंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है अयोटा वाला इसको अलग लिख देंगे, ये प्लस ये ब्रैकेट में -2x प्लस y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक आ जाएगी 2x जमा वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी आ जाएगी -2x जमा वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। 2x जमा वाई बराबर 4 आ गई और -2x जमा वाई बराबर 2 आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास 1 होगी, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। अब इसमें से हमने एक इक्वेशन निकाल के दूसरी में दर्ज कर लेनी है। अब यहाँ पे गौर करें, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब y खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे देखें, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस होके खत्म हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जमा करने से, आप या सवाल नंबर 1 और 2 को जमा करने से आपने ऐसे लिखने के बाद इन दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है 2x जमा y इज इक्वल टू 4 और -2x जमा y इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए इनको हमने प्लस करना, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, जमा 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 होते हैं, 1 और 1 क्या आ गया 2, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 में 2 जमा करें तो 6 आ जाता है बेटा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इधर आके तकसीम होगा तो आपस में कट जाते हैं, 2 3 6, 2 3 6 आ जाता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो y की कीमत को आपकी मर्जी है इक्वेशन नंबर 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। तो मैंने जो है इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी किसकी, y की, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, y की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुसावात नंबर 1 जो है वो है हमारे पास 2x जमा y बराबर 4, ठीक है, ये वाली है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x जमा y बराबर 4, 2 आ गया, x आ गया, जमा y की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी 3 वो आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2x वैसे आ जाएगा, बराबर आ गया 4, अब ये जमा का 3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा।
تو 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 में से जब 3 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीब हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, बल्कि आ भी गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीन मेथड से मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम मेथड है बेटा, बिल्कुल सेम मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसने दिया हुआ है, कहता है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की कीमत फाइंड करनी है। कहता है इफ ए जमा बी अयोटा आगे ब्रैकेट 1+3 अयोटा इज इक्वल टू किसके है, -8 + 11 अयोटा के। तो बेटा इस रकम को आपने सेम ऐसे लिखते जाना है और इनको आपस में सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो क्या करेंगे, सादा तरीका, ए लिखा और ये सारी रकम लिख दी 1+3 अयोटा, प्लस बी अयोटा लिखा, फिर ये सारी रकम लिख दी 1+3 अयोटा इज इक्वल टू किसके आ गया, -8 + 11 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाता है, प्लस ए को जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 ए अयोटा आ गया, ए को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 ए अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस बी अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी अयोटा ही आ जाता है, प्लस बी अयोटा को जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बी आ जाएगा, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई हो गए, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 + 11 अयोटा आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए फिर अयोटा और अयोटा दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, जब अयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3a जमा बी बच जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, फिर देख लें ए आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे अयोटा क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3a जमा बी, फिर आ जाएगा प्लस 3b, अब अयोटा स्केयर की जगह पे, इसकी जगह पे हम -1 लगा देंगे, इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, ए लगा दिया, प्लस 3a जमा बी आ गया, ब्रैकेट आगे अयोटा आ जाएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाता है, इज इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, बड़ा आसान ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, तरतीब दे देनी है, मतलब रियल नंबर्स को एक साइड पे और इमेजिनरी यानी अयोटा वाले को एक साइड पे लिख देंगे, तो ए आ जाएगा -3b इसको साइड पे लिख देंगे, प्लस अब ये इमेजिनरी पार्ट जो है अयोटा वाला, ये 3a जमा 20 को इस साइड पे लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 जमा 11 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a -3b बराबर किसके है, -8 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी। इस तरह ही 3a जमा b जो है ये इक्वल टू किसके है, 11 के, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे देखें a -3b है और यहाँ पे देखिए 3a जमा b है, या तो यहाँ पे b होता तो ये हम इसको प्लस करते तो आपस में कट जाते। ठीक है, तो या यहाँ पे बेटा -3 हो तो हम प्लस करें तो ये कट जाए, मतलब एक रकम हमने काटनी है तब दूसरी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे 3 है, हम कहते हैं कि या यहाँ पे 3 आ जाए तो या यहाँ पे 3 आ जाए, ताकि आपस में जो रकमें क्या हो जाए, कट दें। तो क्यों ना अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से ज़रब देनी है, 3 लिख के तो यहाँ पे लिखेंगे 3a जमा b इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 को इस इधर से भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बेटा हमने कर देना है। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, प्लस 3 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाता है, इज इक्वल टू बेटा 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाता है, 33 आ जाता है। अब हमारे पास ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एक और बन गई, वो है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को दोनों को प्लस कर लेंगे, इस तरह फिर एक रकम जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी a -3b इक्वल टू -8, हमने वो यहाँ पे लिख दी a -3b इक्वल टू -8। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास आई थी आफ्टर मल्टीप्लाई वो आ गई 9a जमा 3b इक्वल टू 33, हमने यहाँ पे लिख दी 9a जमा 3b इक्वल टू 33। तब इनको हम प्लस करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, 9 में 1 जमा करेंगे तो 10a आ जाता है इक्वल टू 33 में से जब 8 को माइनस किया तो 25 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा,
اب यहाँ पे ए लगा दिया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10a इज इक्वल टू 25 है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको काट दें, 2 पे भी काट सकते हैं, सॉरी 5 पे काटेगा, 5 2 10, 5 दूनी 10 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2 आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब ए की वैल्यू 5/2 आ गई। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो किस तरह निकालेंगे, सो सिंपल है, आसान है बेटा। ए की कीमत को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रख ले, 2 में रख ले, 3 में रख ले, दर्ज करके तो बी की वैल्यू हमने आसानी से निकाल लेनी है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ए की वैल्यू दर्ज करके बी की निकाल लूंगा। ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है थी a माइनस 3 भी इक्वल टू -8। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी, a माइनस 3 भी इक्वल टू -8, तो हमने वो यहाँ पे लिख दी a माइनस 3 भी इक्वल टू -8। ठीक है, अब a की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी 5/2, तो a की जगह पे उसकी कीमत लगा दी 5/2। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं a की वैल्यू हमने निकाली थी 5/2 बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी 5/2 लगा दी, -3 b इज इक्वल टू -8 आ गया। अब -3 भी वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -8 ऐसे रहेगा। अब ये 5/2 प्लस का है क्योंकि इधर साइन प्लस का है, जब इसको उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको मजीद इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, -3 भी आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 2 है यहाँ पे 1 है, 2 और 1 एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाता है बेटे। ठीक है, तो शॉर्टली देखें, 2 को डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, माइनस ये वाला 2 आपस में कट जाते हैं तो 5 आ जाएगा। दोबारा देख लें, 2 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, -2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ना, 2 एकम 2 तो 1 आ जाता है, 1 को 5 से तरफ देंगे तो 5 ही आ जाता है। ठीक हो गया। अब क्या करना है बेटा हमने, उसके बाद -3 भी एज इट इज इक्वल टू, अब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 16 में 5 जमा करेंगे तो 21 आ जाता है। अब 16 चूंकि बड़ा है, उसका साइन, उसकी अलामत कौन सी है, माइनस की, तो वो लगा देंगे, माइनस बड़ा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बेटा आपस में कर देंगे, 21/2। अब देखें यहाँ पे 3 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर देख लें 21/2 है, 3 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट दे बेटा, 3 एकम 3, 3 7 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ए की कीमत हमारे पास आ गई 5/2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है जी, 5/2 एंड b इज इक्वल टू क्या है, 7/2। तो बेटा ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी बेटा। कमेंट्स में आप बता सकते हैं अगर कोई टॉपिक की समझ ना आई हो, किसी लाइन की समझ ना आई या किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो इंशाल्लाह जो है वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।